हाँ जी, अपनी प्रीवियस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਮੇजेस ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਮੇजेस ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, अज अपना टॉपिक है एप्लीकेशनस ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजेस। इलैक्ट्रिकल इमेजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਮੇजेस ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਫੋਰਸ, એનર્ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਚਾਰਜ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਲਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਸ ਕਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਮੇजेस, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸ ਕਿਊ, ਕੋਈ 0 0 ਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਇਹ XYZ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਮੇਜ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ रियल चार्ज है उसकी पोजीशन 0 0 डी है तो अपने को जो नेगेटिव चार्ज है वो 0 0 माइनस डी पोजीशन ते पिया होएगा, मतलब इक्वल एंड ओपोजिट डिस्टेंस ही होएगी उसकी शीट तो, जो अपने को इमेज चार्ज होएगा। तो ये आप सारा कुछ कल की क्लास दे विच डिस्कस किया सी। तो अपने को एक तरीके नाल एवें दी कंडीशन बनती है, ए पॉइंट ते चार्ज पे है, बी पॉइंट ते माइनस क्यू चार्ज पे है। इस शीट नूं आपां रिप्लेस ही करता तो इसनूं आपां रिमूव ही कर रहे हैं ते अपने को पी पॉइंट XYZ इत्थे आपां पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ए ते बी वाले चार्ज दे करके। सब तो पहला ए वाला पॉइंट है जो, इसके लिए अपने को पोटेंशियल कितना होएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला की हुंदा अपने को के क्यू अपॉन आर। तो जो आपां ए पॉइंट दे करके पोटेंशियल फाइंड आउट करांगे तो की होगा के इंटू क्यू अपॉन आर, आर मीनस AP। सिमिलरली जो बी पॉइंट वाले चार्ज लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करांगे तो के इंटू माइनस क्यू अपॉन BP, बिकॉज अपने को डिस्टेंस होंदी है R। तो यही चीज लिखी है मैं, देखो पोटेंशियल फाइंड आउट किया। हुण AP ते BP दी डिस्टेंस किवें फाइंड आउट करांगे। देखो अपने को जो AP है, AP इन्हां दोनों पॉइंट्स के उपर आपां डिस्टेंस फॉर्मूला लगावांगे 0 0 D XYZ दे उपर। डिस्टेंस फॉर्मूला की हुंदा है x1 माइनस x2 दा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दा होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 दा होल स्क्वायर। जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगावांगे तो अपने को डिस्टेंस यही आ जाएगी बिकॉज इतने तो अपने को कोऑर्डिनेट्स की ने 0 0 ने। सिमिलरली इन्हां दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला लगावांगे तो अपने को BP की डिस्टेंस भी आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आई होप सबनों क्लीयर होएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हुंदा है वो हुंदा x1 माइनस x2 दा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दा होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 दा होल स्क्वायर। तो आप ए ते पी दे विच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है x1 y1 z1 x2 y2 z2। सिमिलरली जो इन्हां दे विच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपने को ये की आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल तो फाइंड आउट हो गया। हुण आपां फाइंड आउट करना है इलैक्ट्रिकल फील्ड। हुण देखो जो इलैक्ट्रिकल फील्ड हुंदा है वो हुंदा अपने को ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल दे इक्वल माइनस डेल V दे इक्वल। तो डेल अपने को की हुंदा करली बाय करली x, करली बाय करली y, करली बाय करली z। x अपने को I कैप, J कैप, K कैप भी लिख सकते हैं। x कैप, Y कैप, Z कैप मीन्स डायरेक्शंस अलोंग एक्सिस, अलोंग Y एक्सिस, अलोंग Z एक्सिस। तो हुण देखो अपने को जो इलैक्ट्रिकल फील्ड है, इलैक्ट्रिकल फील्ड किवें होएगा, देखो
हमेशा नॉर्मल टू सरफेस हुंदा है इलैक्ट्रिकल फील्ड, चाहे अपने कोल एंटर हो रही होन इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस, चाहे अपने कोल किसी भी चार्ज दे विचों बाहर जा रही होन, तां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस हमेशा सरफेस दे की हुंदियां ने परपेंडिकुलर हुंदियां ने इस तरीके नाल। तां ये अपने कोल परपेंडिकुलर हो गया। किहड़ी डायरैक्शन होगी ये? Z डायरैक्शन होगी, बिकॉज ये आपां Z डायरैक्शन लेके चले हैं। तां इलैक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ Z डायरैक्शन च होएगा, अलोंग एक्स से अलोंग वाई की हो गया 0 हो गया, बिकॉज इलैक्ट्रिकल फील्ड हमेशा सरफेस दे परपेंडिकुलर हुंदा है, ते जो सरफेस दा परपेंडिकुलर आपां ड्रॉ कर रहे हैं वो Z डायरैक्शन दे विच आ रहे हैं अपने कोल। तां इलैक्ट्रिकल फील्ड अपने कोल माइनस करली V बाय करली Z क्या, बिकॉज ये सिर्फ Z डायरैक्शन च ही होएगा। ते हुण अपने कोल देखो आपां डेरिवेशन लैनी है विद रिस्पैक्ट टू Z। किस दी डेरिवेशन लैनी है आपां? पोटेंशियल दी। आपां पोटेंशियल दी वैल्यू पुट कीती, हुण आपां इस दी डेरिवेशन लैने आ। देखो आपां की करदे आ, आपां इस दे विचों KQ कॉमन ले लैने आ, दोनां दे विचों KQ कॉमन लिया। पहला आपां इसदा डेरिवेटिव लैने आ विद रिस्पैक्ट टू Z। तो पहला तो सब तो पहला चलो माइनस भी आपां बाहर ही लिख लिया, इसका डेरिवेटिव लिया x² प्लस y² प्लस Z माइनस D दा होल स्क्वायर, ऊपर जाऊगा पावर कादे च आ जाएगी -1/2। सब तो पहला तो -1/2 अगे आएगा, इस दी पावर y1 लैस हो जाएगी, ताकि आ जाएगा x² प्लस y² प्लस Z माइनस D दा होल स्क्वायर दी पावर कितनी आ जाएगी -1/2 तो ऑलरेडी सी, उसदे विचों आपां 1 सबट्रैक्ट करांगे तो कितनी पावर आ जाएगी -3/2। ते नाल अपने कोल की आएगा, फिर इसकी भी डेरिवेशन आएगी, मतलब 2 इंटू Z माइनस D। सिमिलरली इस दे विच भी अपने कोल की होएगा, एक तो माइनस ऑलरेडी अपने कोल पिया ही सी, एक -1/2 जो आपां इसनूं उपर लेके जावांगे फिर आ जाएगा x² प्लस y² प्लस Z माइनस D दा होल स्क्वायर दी पावर -1/2 -1 इंटू 2 इंटू Z प्लस D। कुछ नहीं, इत्थे आपां सिंपल डेरिवेशन वाला जो अपने कोल फॉर्मूला हुंदा है वो फॉर्मूला अप्लाई कीता है, उस तो बाद आपां इसनूं सॉल्व कर लांगे। हाँ जी, जो उस एक्सप्रैशन नूं आपां थोड़ा सिंपलीफाई करांगे, जो कुछ कटता है उन्होंने कट के अपने कोल ये वैल्यू आएगी इलैक्ट्रिकल फील्ड दी। जो इलैक्ट्रिकल फील्ड है ये अबव दी सरफेस आ रही है, मतलब सरफेस दे ऊपर कितना इलैक्ट्रिकल फील्ड है, अबव दी सरफेस की वैल्यू है ये अपने कोल इलैक्ट्रिकल फील्ड दी। हुण आपां जे ऑन दी सरफेस कढना होवे, ऑन दी सरफेस इलैक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आपां फाइंड आउट करनी होगी, तो देखो जो ऑन दी सरफेस अपने कोल Z की होएगा 0 होएगा ना, बिकॉज इत्थे Z 0 है, इंक्रीज हुंदा हुंदा इत्थे तक आके की हो गया D, इत्थे तो अपने कोल 0 ही होएगा Z। तो अगर आपां ऑन दी सरफेस कढनी है इलैक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू, तो आपां की करदे आ, आपां Z नूं की पुट कर दिंदे आ 0, जिथे जिथे Z है उत्थे उत्थे 0 पुट कर दो, इत्थे आ जाएगा -D x² प्लस y² प्लस D² दी पावर 3/2। सिमिलरली इत्थे भी -D x² प्लस y² प्लस D² दी पावर 3/2। तो अपने कोल की आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज डिनोमिनेटर्स सेम बन गए हुण इन्हां दे, -2KQD बिकॉज इत्थे आ जाएगा -2D अपॉन x² प्लस y² प्लस D² दी पावर 3/2। तो ये अपने कोल कित्थे आ गई इलैक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू ऑन दी सरफेस। एग्जाम दे विच किसी भी तरीके नाल पूछ सकते हैं कि ऑन दी सरफेस इलैक्ट्रिकल फील्ड कितना होएगा, अबव कितना होएगा या बिलो कितना होएगा। तो जो बिलो होएगा वो इलैक्ट्रिकल फील्ड की होएगा 0 होएगा। देखो 0 क्यों होएगा, यह अपने कोल एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन कंडक्टिंग शीट है। तो यह जो भी इस पॉजिटिव चार्ज करके इलैक्ट्रिकल फील्ड लाइनस आनगियां वो उन्होंने सबनों की कर देगा, शील्ड कर देगा, मतलब इत्थे ही रोक देगा, नीचे तो इलैक्ट्रिकल फील्ड लाइनस नूं एंटर ही नहीं होने देगा। तो जो इलैक्ट्रिकल फील्ड लाइनस नीचे जा ही नहीं रही तो नीचे इलैक्ट्रिकल फील्ड की हो जाएगा 0 हो जाएगा। हुण इत्थे इस चीज नाल नहीं कन्फ्यूज होना कि इत्थे -Q चार्ज पिया तो इसके करके भी तो इलैक्ट्रिकल फील्ड होगा, नहीं, ये तो अपने कोल हाइपोथेटिकल चार्ज है, ये एक्चुअल थोड़ी प्रेजेंट है, ये तो अपने कोल इलैक्ट्रिकल इमेज आपां इसनूं रीप्लेस करके लिख रहे हैं, तो ये करके कोई इलैक्ट्रिकल फील्ड नहीं होएगा।
एक्चुअल तो आही दो चीज़ां प्रेजेंट ने, एक शीट एक चार्ज। ये तो आप इसनों रिप्लेस करके एक हाइपोथेटिकल चार्ज लेके चलते हैं जो कि इसदियां कंडीशंस नूं सैटिस्फाई कर दिंदा। तो आप ये करके सॉल्व करके पोटेंशियल इलैक्ट्रिकल फील्ड कढ लेने सो दैट ईजी रहे अपन नूं। ठीक है, एक मैथड है जस्ट पोटेंशियल ते इलैक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करन दा। अदरवाइज प्रेजेंट इत्थे ये शीट ही है, ये चार्ज हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो यह शीट जो भी इलैक्ट्रिकल फील्ड लाइनस आ रही होणगियां उन्होंने इत्थे ही रोक दिंदी है। तो इलैक्ट्रिकल फील्ड लाइनस जो नीचे जा ही नहीं रही तो अपने को बिलो की होएगा, बिलो दी शीट इलैक्ट्रिकल फील्ड की हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर एग्जाम के क्वेश्चन आंदा तो आंसर डायरैक्टली 0 है। इत्थे आपां नूं सॉल्व करन दी ही जरूरत नहीं। इन्ने ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड लग रहे ने फॉर्मूलाज, बट उत्थे जो आपां सिर्फ एक एक्सप्रैशन ही लिखना होगा उत्थे नहीं इन्ना टफ लगेगा आपां नूं। जो फाइंड आउट करन लई कह रहे ने आपां सिर्फ उसका एक्सप्रैशन लिखांगे, सॉल्व करांगे ते अपने कोल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नैक्सट है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर अपन इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहन तो किवें फाइंड आउट करनी है। देखो अपन सबनों ये पता है कि इलैक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे इक्वल हुंदा है। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज इंड्यूस्ड है तो पाई एन लिख रहे हैं। तो यह जो है ई दे इक्वल, ई अपने को जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो अपने को अबव दी प्लेट बिलो दी प्लेट उन्होंने दोनों के सम दे इक्वल होएगा। बट अपने को बिलो दी प्लेट की है, इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अबव दी प्लेट वाला ही रह गया सिर्फ। तो अपने को देखो ई दी वैल्यू जो कि आप फाइंड आउट कर चुके, ई दी वैल्यू अबव दी प्लेट आप फाइंड आउट कर चुके, वो वैल्यू आप इत्थे पुट कर देंगे। पुट की वैल्यू तो ये अपने को आ गया सिग्मा इंड्यूस्ड। बट अगर आप ऑन दी सरफेस ऑफ दी शीट कढ़ना होवे, जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दी शीट कढ़ना होवे तो अपने को Z आप की पुट कर देंगे 0, बिकॉज अपने को शीट दे ऊपर Z की है 0, तो आप पुट कर देंगे 0। पुट करन तो बाद जो आप सॉल्व करांगे तो अपने को इंड्यूस्ड दी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ऑन दी सरफेस कितनी आएगी, -2qd अपॉन 4πx² प्लस y² प्लस d² दी पावर 3/2। नैगेटिव है, आनी भी नैगेटिव ही चाहिए सी, बिकॉज अपने को चार्ज पॉजिटिव लिया होया तो इत्थे जो चार्ज इंड्यूस होएगा वो नैगेटिव ही इंड्यूस होएगा। तो अपने को की वैल्यू आई है नैगेटिव दे विच। तो ये अपने को इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन दी सरफेस। ये अपने को वैसे आप अबब किते भी किसी पॉइंट ते कढ़ना होवे ओदे लई है, तो ये अपने को ऑन दी सरफेस है। हाँ जी, हुण अगर आप फोर्स फाइंड करना होवे इस शीट का ते इस चार्ज का, तो जो इन्हां दे विच फोर्स होएगा आप इस शीट का ते चार्ज का कढ़न दी बजाय की करते हैं, इस चार्ज का इस इमेजिनरी चार्ज दे नाल फोर्स फाइंड आउट कर लेने आ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को जो फॉर्मूला वो अप्लाई हो जाएगा। तो जो इन्हां दोनों चार्जिस का दे विच फोर्स होएगा वही इस चार्ज इस शीट दे विच होएगा फोर्स। ठीक है, तो आप ये दोनों चार्जिस लैके फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने को की ने चार्जिस +q -q ते डिस्टेंस कितनी है दोनों दे विच 2d। हाँ जी, तो अपने को फोर्स आ जाएगा q × -q अपॉन 4πε0 2d दा होल स्क्वायर। z कैप क्यों लिया, क्योंकि अलोंग z डायरेक्शन ही होएगा अपने को फोर्स, बिकॉज चार्जिस ही उस डायरेक्शन च पे ने। तो अपने को -q² 4πε0 4d² × z², और वी कैन राइट -q² अपॉन 16πε0 d² × z²। तो जदों भी फोर्स नैगेटिव दे विच हुंदा है तो अट्रैक्टिव फोर्स हुंदी है, ते जदों भी अपने को फोर्स पॉजिटिव हुंदा है मीनस ग्रेटर दैन 0 हुंदा है, मतलब रिपल्सिव फोर्स हुंदा है। इत्थे अपने को अट्रैक्टिव फोर्स ही होएगा, बिकॉज दोनों ओपोजिट चार्जिस वाले हैं। अपने को शीट के ऊपर नैगेटिव चार्ज है, तो चार्ज के ऊपर जो गिवन चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ही होएगा। उत्थों वेरीफाई भी हो रहा है बिकॉज नैगेटिव चार्ज आ रहा है अपने को, एंड नैगेटिव फोर्स मीनस अट्रैक्टिव फोर्स। हुण आपां एक होर एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आपां नूं एग्जाम दे विच क्वेश्चन आए कि अपने को कोई भी शीट पई है, ठीक है, कोई भी शीट पई है, इत्थे अपने को इत्थे एक +q चार्ज पे है, एक -q चार्ज पे है। जो -q चार्ज है सपोज वो d डिस्टेंस से है, जो +q चार्ज है सपोज वो 3d डिस्टेंस के ऊपर है। तो इत्थे अपने को कोई भी कंडक्टिंग शीट है, ये कोई भी कंडक्टिंग शीट है। आपां की करना है, आपां इस कंडक्टिंग शीट का ते आ दोनों चार्जिस दे विच जो फोर्स होएगा टोटल फोर्स वो फाइंड आउट करना है। तो देखो कोई भी कंडक्टिंग शीट है तो आप इन्ना चार्जिस दे इमेजिस लैके चलांगे।
इस चार्ज की इमेज इत्थे होएगी किते प्लस क्यू, जे नैगेटिव चार्ज है तो इमेज प्लस दे विच होएगा, तो अपने को भी कितनी डिस्टेंस होएगा, डी डिस्टेंस यही होएगा। सिमिलरली जो ये चार्ज है यदी इमेज भी पई होएगी इत्थे किते माइनस क्यू, बिकॉज ये पॉजिटिव है, इमेज नैगेटिव दे विच होएगी, तो भी कितनी डिस्टेंस से होएगा, 3d डिस्टेंस से। हुण जदों आपां इन्हां चार्जिस दा इस शीट दे नालों फोर्स फाइंड करना है तो आपां एक्चुअल च की करांगे, आपां इन्हां चार्जिस दी आपस दे विच ही फोर्स फाइंड आउट कर लांगे, ओही इन्हां चार्जिस दी इस शीट दे नाल फोर्स दे इक्वल होएगा, क्योंकि आपां इस शीट नूं रीप्लेस करता इहदियां दो जो इमेजिस आ रही होणगियां इलैक्ट्रिकल इमेजिस ओहदे नाल, बिकॉज इहदी इमेज होगी एक इस चार्ज की इमेज होगी। तो इस चार्ज का सब तो पहला आपां इस दे नाल फोर्स कढदे हां, इन्हां दे विच फोर्स की होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्केयर, बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है, डिस्टेंस कितनी होगी इन्हां दे विच 2d, तो नीचे आ जाएगा 4d स्केयर। सिमिलरली फिर इस चार्ज की इस नालों फोर्स फाइंड आउट करांगे, की होएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्केयर, बिकॉज दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव च ने, डिस्टेंस कितनी है 3d प्लस d मीनस 4d, 4d का होल स्केयर मतलब 16d स्केयर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आपां इस चार्ज की इस दे नाल फोर्स फाइंड आउट करांगे, की आएगा माइनस क्यू स्केयर, डिस्टेंस कितनी होगी 3d प्लस 3d 60 मीनस 36d स्केयर। इसमें आपां सिंपलीफाई करके टोटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके नाल आपां इस मैथड नूं यूज कर सकते हैं अगर आपां ने फोर्स फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, या फिर इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इनीशियली आ चीज़ नहीं गिवन सी, आपां नूं सिर्फ आ गिवन सी ते इमेजिस आपां खुद लैके चले हाँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजिस आपां नूं पता है कि कोई भी न्यूमेरिकल किवें सॉल्व करना है। जी नैक्सट टॉपिक अपने सिलेबस विच मैंशन किया होया है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू डायपोल। किसी डायपोल के लिए आपां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ते इलैक्ट्रिक फील्ड जो कि आपां ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास के विच डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डायपोल की एक्शियल एक्सिस से या इक्वेटोरियल एक्सिस से इलैक्ट्रिकल फील्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होएगा। तो ये अपनी क्लास नंबर 5 दे विच आपां डिस्कस किया सी, लैक्चर 5 दे विच। अगर तुसीं वो वीडियो नहीं देखी तो तुसीं उस वीडियो नूं देख सकते हो, बिकॉज ये टॉपिक्स आपां ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। हाँ जी, उस क्लास दे विच अपना सिर्फ इक्को ही टॉपिक रह गया सीगा जो कि आपां अज डिस्कस कर लैंदे आ। किसी भी डायपोल दे लई कोई डायपोल गिवन है, आपां नूं कोई भी डायपोल गिवन है, उस डायपोल करके उसकी लेंथ सपोज 2l है, आपां एक्शियल एक्सिस से मतलब डायपोल की एक्सिस से पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया सी, इक्वेटोरियल एक्सिस से मतलब परपेंडिकुलर लाइन से फाइंड आउट कर लिया सी। बट जरूरी नहीं भी वो पॉइंट इक्वेटोरियल या एक्शियल ते ही पिया होएगा, वो किसी भी पॉइंट P के उपर हो सकता है। वो पॉइंट P सपोज इस डायपोल के सेंटर तो r डिस्टेंस से है, तो इस डायपोल के सेंटर के नाल थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट P के उपर अगर आपां पोटेंशियल फाइंड आउट करना होवे, एक तो आप जो ए दे उपर चार्ज है माइनस क्यू उससे करके पोटेंशियल फाइंड आउट करांगे, एक जो अपने को बी दे उपर चार्ज है प्लस क्यू उससे करके पोटेंशियल फाइंड आउट करांगे। तो जिहड़ा इन्हां दा टोटल पोटेंशियल होएगा वही अपने को पी दे उपर पोटेंशियल होएगा। अगर इसकी डेरिवेशन करांगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, बट आपां सिर्फ अपने मास्टर कैडर के एग्जाम के लिए कर रहे हैं जिस दे विच अपने लिए सिर्फ एक्सप्रैशन इंपॉर्टेंट है, तो आपां वही एक्सप्रैशन ही करांगे। अगर तुसी डेरिवेशन करने तो तुसी वो कर सकते हो, बट आपां सिर्फ एक्सप्रैशन ही डिस्कस करांगे बिकॉज अपने को सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ने, तो आपां थोड़ा स्पीड नाल ही चलांगे। तो अपने को पोटेंशियल जो है वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l cos थीटा। cos थीटा पता है ना, जो एंगल इस पॉइंट इस डायपोल के नाल बना रहा है, तो r उस पॉइंट की डायपोल के सेंटर तो डिस्टेंस है, तो 2l इस डायपोल की लेंथ है। तो होएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l cos थीटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर, r is the distance of the point from the center and l is the half of the length of dipole। तो अपने को जो Q इंटू 2l है वो की होंगे, अपने को डायपोल मूवमेंट होंगे, तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। तो अपने को की आ जाएगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये अपने को अगर आप इतों थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दिए, थीटा 0 पुट कर दिए मतलब इसी एक्सिस के उपर होएगा वो पॉइंट, मतलब अपने को एक्शियल एक्सिस वाला केस आ जाएगा। अगर आप थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दिए मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब उस टाइम ते इक्वेटोरियल एक्सिस वाला केस आ जाएगा। तो आप इन्हों तो एक्शियल ते इक्वेटोरियल वाले डिराइव भी कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला याद है, आप एक्शियल ते इक्वेटोरियल एग्जाम के फाइंड आउट भी कर सकते हैं। एक्शियल थीटा 0 पुट करके, इक्वेटोरियल थीटा 90 पुट करके। जिवें हुण आपां
थीटा नूं 0 पुट कर रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल कितना आएगा, cos 0 कितना होंदा 1 p/4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देखो ये हैगा सी ना एक्सियल एक्सिस वाला पोटेंशियल ऑन एक्सियल एक्सिस आपां डिस्कस भी कीता सी। तो अपने को स्पेशल केसिस ही ने ये एक्सियल ते इक्वेटोरियल वाले इसके। सिमिलरली अगर आप थीटा नूं 90 पुट कर दिए, सॉरी इत्थे cos थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा बिकॉज थीटा 0 है। सिमिलरली अगर आप cos थीटा नूं 90 पुट कर दिए तो अपने को cos 90 कितना हुंदा है 0, तो अपने को पोटेंशियल भी की आ जाएगा 0। तो इक्वेटोरियल ते पोटेंशियल 0 हुंदा है, ये आप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक्सप्रैशन है जो अपने को किसी भी पॉइंट के उपर जो कि डायपोल तो आर थीटा ते पिया उसके उपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो ये वाला एक्सप्रैशन यूज होएगा उत्थे। नैक्सट टॉपिक अपने सिलेबस दे विच फोर्स एंड टॉर्क ऑन डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। आपां की कीता, एक इलैक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव टू नैगेटिव है, पॉजिटिव टू नैगेटिव इस एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच आपां एक डायपोल प्लेस करता। आपां इस डायपोल दे उपर फोर्स भी ते टॉर्क भी दोनों टर्म्स फाइंड आउट करनियां ने। सब तो पहला देखो ये डायपोल है, डायपोल दे उपर इहदे विच ए पॉइंट ते माइनस क्यू चार्ज पे, बी पॉइंट ते प्लस क्यू चार्ज पे एंड दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 2l, मीनस डायपोल दी लेंथ कितनी है अपने कोल 2l। तो अपने को डायपोल मूवमेंट किस इक्वल होंगे, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल, इत्थे 2l ही लिख लो। तो अपने को जो डायपोल मूवमेंट होंगे एक वैक्टर क्वांटिटी है, तेदी डायरेक्शन हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव होंगी है। मतलब इस डायपोल के लिए अगर देखिए तो डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन दे विच होएगा। हुण आपां फाइंड आउट करना है फोर्स एंड टॉर्क। सब तो पहला देखो जो प्लस क्यू चार्ज है इसके उपर इस इलैक्ट्रिक फील्ड करके जो फोर्स होएगा इस डायरेक्शन च होएगा, बिकॉज अपने को जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो हमेशा इलैक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन ही मूव करते हैं। इलैक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव, चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव ही मूव करते हैं, तो फोर्स भी इलैक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन दे विच ही लगेगा पॉजिटिव चार्ज की। सिमिलरली जो नैगेटिव चार्ज है इसके उपर फोर्स हमेशा इलैक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट डायरेक्शन च लगता है, बिकॉज नैगेटिव चार्ज हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव होंगे, तो इन्हां दी डायरेक्शन की होगी ओपोजिट। तो इलैक्ट्रिक फील्ड जो नैगेटिव चार्ज है इसके फोर्स हमेशा इलैक्ट्रिक फील्ड तो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच लगदा है। देखो इत्थे फोर्स माइनस क्यू ई बिकॉज नैगेटिव चार्ज है, तो इहदा फोर्स प्लस क्यू ई बिकॉज इत्थे पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्हां दोनों चार्जिस दे लई जो नैट फोर्स हो गया वो की हो गया 0, बिकॉज दोनों चार्जिस इक्वल भी ने ते ओपोजिट भी ने, तो की हो गया कैंसल आउट। तो हुण देखो इसके लिए अपने को होमोजीनियस इलैक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, मतलब इत्थे इस चार्ज से भी उन्ना ही इलैक्ट्रिक फील्ड होवे, इस चार्ज से भी उन्ना ही इलैक्ट्रिक फील्ड होवे, ताही अपने को नेट फोर्स की होएगा 0। तो अगर होमोजीनियस एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच आपां चार्जेस नूं प्लेस करदे हां, डायपोल नूं प्लेस करदे हां, तो नेट फोर्स की हो जांदा अपने को 0। हुण आपां कढना है टॉर्क। जो टॉर्क हुंदा वो हुंदा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स केड़ी लैनी है, नेट फोर्स लवांगे तो 0 ही हो जाएगा। आपां फोर्स लैनी है जां इस चार्ज करके जो फोर्स लग रही है जां इस चार्ज करके, दोनों ही इक्वल ने, साइन आपां कंसीडर नहीं करांगे प्लस माइनस, बस आपां की लै लांगे क्यू ई, फोर्स की वैल्यू तो क्यू ई होगी। हुण अपने कोल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्सिस, जो दोनों फोर्सिस लग रही ने उन्हां दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स आ वाली है एक आ फोर्स है, इन्हां दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपां फाइंड आउट करते हैं। सपोज इत्थे पॉइंट सी है, तो जो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी बी सी दे इक्वल। तो हुण आपां बी सी दी वैल्यू किवें फाइंड आउट करिए। देखो सपोज जो ये डायपोल है वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल थीटा एंगल ते पिया, ठीक है। जो ये डायपोल है वो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल थीटा एंगल दे उपर पिया, तो इत्थे एंगल थीटा हो गया। तो अपने को अगर इत्थे एंगल थीटा तो इत्थे भी तो थीटा ही होएगा, बिकॉज ये केड़े दोनों केड़े एंगल ने, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो आपां हुण अगर इत्थे ट्रिग्नोमेट्री लगाइए तो अपने को बी सी अपॉन बी ए कादे इक्वल होएगा, साइन थीटा दे, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज है। तो आप देखिए बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड अपन ये भी पता है भी बी ए दी वैल्यू कितनी है, बी ए दी वैल्यू आप कितनी लेके चलने, डायपोल दी लेंथ 2l, तो अपने को की हो जाएगा 2l साइन थीटा, ये बी सी दी वैल्यू आ गई। तो अपने को आ गया फोर्स की वैल्यू की क्यू ई, बी सी दी वैल्यू अपने को 2l साइन थीटा। हुण अपने को देखो जो Q इंटू 2l की हुंदा अपने को P डायपोल मूवमेंट,
डायपोल मूवमेंट आ गया PE sin थीटा। तो अपने कोल टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई P वैक्टर डॉट E वैक्टर, बिकॉज साइन थीटा जो होंगे सॉरी क्रॉस जो साइन थीटा होंगे अपने को क्रॉस प्रोडक्ट हटा के लगता होंगे। तो अगर आप साइन थीटा हटाइए तो इतने की लग जाएगा दोनों वैक्टर्स दे विच क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपने को टॉर्क भी एक वैक्टर क्वांटिटी है, वैक्टर क्वांटिटी है जिस डायरेक्शन दे विच P होएगा जिस डायरेक्शन दे विच E होएगा टॉर्क इन्हां दोनों तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच होएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट दे विच अपने को जो रिजल्टेंट वैक्टर हुंदा है वो इन्हां दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच ही हुंदा है। हाँ जी, हुण अगे अपने को इसके कुछ स्पैशल केसिस ने जो कि इंपॉर्टेंट ने। देखो टॉर्क इज इक्वल टू P वैक्टर क्रॉस E वैक्टर है अपने को। स्पैशल केसिस ने थीटा नाल रिलेटेड, अगर थीटा 0 हुंदा है 180 हुंदा है जां 90 हुंदा है। सब तो पहला अगर थीटा 0 है किन्ना दोनों दे विच P वैक्टर ते E वैक्टर च मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड ते अपने कोल जो डायपोल मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन च नहीं। डायपोल मूवमेंट देखो डायपोल इस तरीके नाल प्लेस किया होया होगा -q टू +q हुंदा डायपोल मूवमेंट, तां टुवर्ड्स राइट हो गया, इलैक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है, तो दोनों दे विच एंगल कितना हो गया 0। अगर थीटा 0 है नेट फोर्स का 0 हैगा ही सी अपने को पता ही है आपां नूं, तां टॉर्क भी की हो जाएगा 0, बिकॉज थीटा 0 तो साइन 0 इक्वल टू 0 हुंदा है। तो अपने को इत्थे पुट करांगे तो टॉर्क भी की हो गया 0। इस कंडीशन दे विच आपां कहांगे कि डायपोल मूवमेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच है। देन अगर अपने को थीटा 180 है, थीटा 180 मीनस इलैक्ट्रिक फील्ड ते डायपोल मूवमेंट ओपोजिट डायरेक्शन च नहीं। इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन च है, डायपोल इस तरीके नाल प्लेस किया होया कि डायपोल फ्रॉम राइट टू लैफ्ट होवे ते इलैक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है अपने को। तो अपने को -q टू +q डायपोल मूवमेंट होंगे। देखो दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट होगी, थीटा 180 हो गया, नेट फोर्स 0 ही सी, तो अपने को टॉर्क भी की हो जाएगा 0, बिकॉज साइन 180 अगेन 0 होंगे, तो इसमें आप कहांगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देन अगर अपने को थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 है तो अपने को साइन 91 होंगे, तो अपने को थीटा की वैल्यू मैक्सीमम जो साइन थीटा की मैक्सीमम वैल्यू होंगी वो 1 ही होंगी है। तो अपने को मैक्सीमम वैल्यू पुट करके अपने को टॉर्क भी किया आएगा मैक्सीमम। तो मैक्सीमम कदों होएगा जो थीटा 90 डिग्री है, एंड मिनिमम कदों होएगा जो थीटा 0 या फिर 180 है, एंड स्टेबल कदों होएगा जो थीटा 0 है, अनस्टेबल कदों होएगा जो थीटा 180 डिग्री है। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।